Hello everyone, today we will be starting with the semicircular arch and how to analyze that. First of all, we will be making the semicircular 3-inch arch. Okay, so this is a semicircular arch. Here, this point is crown here. Okay, this is A, this is B, and as this is a semicircle, so this distance will be R. Okay, from this point, and this distance will be R and this distance will be R from here to here, and this distance will be R from here to here. Now we have to analyze the semicircular arch subjected to UDL on the entire span. So on the entire span there is a UDL that is acting here, okay, of W kilonewton per meter. Okay, so this is the condition. Now how you will analyze it? First of all, the thing is that this is a hinge support. A point is a hinge support here and B also hinge point. So you know that at hinge point there are two unknown reactions. That is one vertical reaction, you can denote it by R or you can denote it by V. So let it denote by V here. This is the vertical one, this is the horizontal one. Okay, so here also there will be two reaction. One will be vertical, that we are denoting by VB, and one will be horizontal reaction, that is HB. सो अब आपको अननोन मालूम है. अब अननोन आपको कौन कौन से कैलकुलेट करने हैं. ये क्राउन है सी पे. यहाँ पे एक आपको एडिशनल इक्वेशन मालूम है, तो आप फर्स्ट इक्वेशन इस पे अप्लाई करोगे, दैट इज समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0. अब समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 है, so the equation will be, you have to see that all the forces which are in x direction. Suppose let this be the Cartesian system, this is x direction, this is y direction. So all the forces in x direction summation will be 0. So let it, if this type of forces which are going in this direction are positive, so the opposite forces will be negative. So the equation becomes HA minus HB equal to 0. Okay, because there is no other force in that direction. Okay, so from here you will get the equation HA equal to HB. So now you have calculated the first condition, that it says that the summation of forces in x direction is 0 and HA reaction is equal to HB. And now apply the second equation that says summation of all the forces in y direction is 0. Now, if you are taking upward going force as positive, then downward force you have to take negative. So, upward forces are here. You can see that VA is going upward, VB is going upwards, and this W kilonewton force is coming downwards. So, let us make a equation here that VA is positive, as it is, we have taken upward going forces are positive, VB will be positive, and minus the total load that is acting on the arch, that is W into 2R. Okay, because you know how to calculate the total loading of the UDL. It is the load intensity into the distance on which it is acting. So W into 2R is the total load here. The summation should be equal to 0. So from here you will get the equation VA plus VB equal to 2WR. Okay, so this is the equation you have after calculation. This is the, this was the first equation and this is the second equation. Okay, now for calculating the other unknowns, apply the third equilibrium equation, that says summation of moment at A support is 0. Let the moment at A be 0, summation of all the moment. अगर आप A पे मोमेंट 0 करेंगे तो देखिए आपको वहां पे क्या करना है. मैंने मोमेंट कैलकुलेट करना सिखाया था आपको. A पे क्या करेंगे आप अपना हाथ अप्लाई कर देंगे, हाथ रख देंगे, तो जितनी भी फोर्सेज आपको दिखेंगी उससे कितना मोमेंट जनरेट हो रहा है वो आपको कैलकुलेट करना है. सो अगर मैं यहाँ पर
अज्यूम करता हूं कि क्लॉकवाइज फोर्सेज आर पॉजिटिव, देन एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेज विल बी नेगेटिव। ओके, सो पॉजिटिव फोर्सेज होंगी जो क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट करेंगी। सो कौन कौन सी फोर्स यहाँ पे क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट करेंगी? देखिए यहाँ पे अगर हम ए पे मोमेंट निकाल रहे हैं, इस पॉइंट पे ए पे हमको मोमेंट निकालना है, तो क्या होगा, ये वी भी कैसा मोमेंट जनरेट करेगा, वी विल बी making a moment in the anti-clockwise direction. So we have taken anti-clockwise moment as negative. So let the equation will be here Vb into the total distance, that will be minus total distance is 2r from A point. So this is the equation. This is anti-clockwise. So एक फोर्स से anti-clockwise मोमेंट आया, दूसरे फोर्स से क्या है, दूसरा फोर्स है लोडिंग। लोडिंग कितना है, टोटल W इंटू 2r। ये कहाँ पे एक्ट करता है, स्पैन के हाफ पे। सो इक्वेशन विल बी, ये क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, सो प्लस टोटल लोड इज W इंटू 2r, दिस इज द टोटल लोड। और ये कहाँ पे एक्ट करता है, टोटल लेंथ के हाफ पे, सो इट विल बी 2r डिवाइडेड बाय 2 and it will be equal to r. So this is the moment equation at A point should be equal to 0. From here you will get Vb into 2r equal to W 2r square. Okay, W 2r square. So यहाँ पर 2 और r कैंसिल हो जाएगा। So equation of Vb, the unknown Vb is coming out to be WR। अब Vb आपको कैलकुलेट कर दिया है, अब आप उसको अप्लाई करेंगे सेकंड इक्वेशन में, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ Va। सो फ्रॉम हियर यू विल गेट Va इक्वल टू 2WR माइनस WR। सो Va विल बी ऑल्सो WR। अब आपके पास दोनों अननोन्स हैं, Va इक्वल टू WR। अब आपने VA भी निकाल दिया, VB नहीं निकाल दिया, अब आपको निकालना है हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कितना होगा। अब हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालने के लिए आपको एक एडिशनल इक्वेशन मालूम है, दैट मोमेंट एट सी, ग्राउंड पे मोमेंट कितना होता है, आर्च में 0 होता है। अब अगर आप मोमेंट एट सी पॉइंट निकाल रहे हैं, सी पॉइंट पे आपको मोमेंट निकालना है इस पॉइंट पे, तो क्या होगा, सी पे मोमेंट निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन बनानी पड़ेगी। और वो इक्वेशन कैसे बनेगी, मैं अगर सी पे हैंड अप्लाई करूंगा तो या तो मेरे को बी पॉइंट से इक्वेशन बनानी पड़ेगी, अगर मैं राइट हैंड साइड से इक्वेशन बनाना चाहता हूँ, अगर लेफ्ट हैंड साइड से बनाना चाहता हूँ तो ए पॉइंट से बनानी पड़ेगी। सो अगर सी पॉइंट पे जाना है, सी कहाँ है, सी ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो हमको ये हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का जो इक्वेशन है ये भी पार्ट लेना पड़ेगा, बिकॉज नाउ इट विल बी हैविंग अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसके लिए हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ओके, नाउ लेट अस मेक एन इक्वेशन फॉर मोमेंट एट सी इक्वल टू 0। सो उसके लिए मोमेंट इक्वेशन बनाएंगे। लेट अस मेक एन इक्वेशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। सो इक्वेशन विल बी VA into the distance from perpendicular distance for VA at C point. So VA into the distance is R, perpendicular distance. So what type of moment is this? VA is producing a clockwise moment. So clockwise moment, if you are taking positive, then anti-clockwise will be negative. Okay, now VA is producing a clockwise। देखिए VA ऐसे लग रहा है, तो ये कैसा मोमेंट जनरेट कर रहा है, क्लॉकवाइज। सो VA, नाउ दिस इक्वेशन इज पॉजिटिव। अब H इक्वेशन के लिए देखिए, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इस डायरेक्शन में है, पर सी पॉइंट का है, ऊपर की तरफ है, तो ये कैसा मोमेंट जनरेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। सो एंटी क्लॉकवाइज वी हैव टेकन नेगेटिव, सो नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज HA इंटू दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए HA इस डायरेक्शन में और सी पॉइंट कितना दूर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज R, सो HA इंटू R। ओके, ये हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज। पर हमको देखना है सी पॉइंट से पहले हमारा ये यूडीएल भी एक्ट कर रहा है, ये जो यूडीएल हमारा है सी पॉइंट तक ये भी एक्ट कर रहा है, तो ये सी पॉइंट पे जाने के लिए कैसा मोमेंट जनरेट करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट कर रहा है। देखिए अब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के लिए हमारे को फिर से माइनस इक्वेशन लगानी पड़ेगी। नाउ द इक्वेशन विल बी माइनस टोटल लोड कितना है उस स्पैन में, A टू C में, W इंटू R, कहाँ पे एक्ट करेगा, R बाय 2 पे, इक्वल टू 0।
सो इक्वेशन यहाँ पे से देखिए VA की वैल्यू रखिए, VA हमारा W इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, HA इंटू आर इक्वल टू ये वैल्यू इधर आ जाएगी तो क्या हो जाएगा WR² अपॉन 2। अब हमें क्या करना है, HA की वैल्यू निकालनी है। सो HA अगर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा WR² माइनस WR² अपॉन 2 इक्वल टू HA इंटू आर। सो ये हो जाएगा हाफ WR², सो इक्वल टू HA इंटू आर। सो आर से आर ये कैंसिल हो जाएगा, HA की वैल्यू आ जाएगी आपको WR/2। सो अब आपने हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकाला है, दैट इज WR/2। नाउ यू हैव ऑल द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स, यू हैव वर्टिकल रिएक्शन एट A point, वर्टिकल रिएक्शन एट B point and horizontal thrust value also. Now you can calculate the horizontal thrust at B point because from equation 1 you have the equation HA equal to HB। अगर HA की वैल्यू हमने निकाल लिया तो HB की वैल्यू भी क्या होगी, सेम। तो अब आपने सारे अननोन निकालने हैं। अब आपको क्या निकालना है, बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन एट एक्स। अब आपको बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन एक्स एक्स निकालना है। अगर मैं यहाँ पे कोई सेक्शन कट करता हूँ एक्स डिस्टेंस पे फ्रॉम ए पॉइंट, ए से यहाँ डिस्टेंस पे एक्स डिस्टेंस पे कट करता हूँ तो बेंडिंग मोमेंट कितना होगा। बेंडिंग मोमेंट की आप इक्वेशन बना सकते हैं ए एक्स डिस्टेंस पे। तो देखिए अब बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन हम अगर इस पॉइंट पे बनाते हैं तो हमको पहले एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। लेट अस मेक अ डायग्राम है। सो ये सेमी सर्कुलर आर्च के लिए डायग्राम है। ओके, ये दो पॉइंट्स हो गए हमारा, एक ए पॉइंट है एक बी पॉइंट है। ओके, अब यहाँ पर सी पॉइंट है और ये एंटायरली लोडेड है यूडीएल से, तो ये यूडीएल एक्ट कर रहा है। तो हमने कहा है एक एक्स डिस्टेंस पे हमने क्या किया है, एक्स डिस्टेंस ए पॉइंट से हमने यहाँ पर एक सेक्शन कट किया, वहां पे हमें बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स निकालना। तो उसके लिए हमें देखना है कि हमारा सेमी सर्कुलर आर्च है, ये डिस्टेंस हमारा आर है, यहाँ से हमने एक इस पे लाइन ड्रॉ करी, ये एट एन एंगल थीटा है और ये डिस्टेंस वाई है, ये डिस्टेंस वाई। ओके, सो यू नो दैट कि हम सेमी सर्कुलर से डील कर रहे हैं, तो सेमी सर्कुलर के लिए हमारे पास ये कंडीशन होती है कि ये डिस्टेंस हमारा रेडियस के बराबर है, तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, आर के बराबर। अब अगर हमारा ये डिस्टेंस आर के बराबर है तो यू नो दैट अगर हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं, वाई की वैल्यू निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे, वाई की वैल्यू क्या होगी, ये अगर एक्स है तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट विल बी आर माइनस एक्स। ओके, सो कॉस थीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है इसका, आर माइनस एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज इज आर। ओके, सो यहाँ पे से हमारी वैल्यू होगी आर कॉस थीटा माइनस, और यहाँ पे क्या कह सकते हैं, आर कॉस थीटा, आर इधर जाएगा यहाँ आ जाएगा इक्वल टू आर माइनस एक्स। सो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज आर माइनस आर कॉस थीटा। सो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आर कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा, एक्स की वैल्यू आ गई। अब वाई की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, वाई की वैल्यू क्या होती है, वाई क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तो साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आर, सो वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। अब एक तो ये इक्वेशन आ गई, दो इसलिए ये इक्वेशन आ गई। अब दो वैल्यूज आपको आ गई तो आप बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स निकाल सकते हैं। बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स के लिए इक्वेशन क्या है, इस पे पॉइंट पे जाना है, दिस इज द एक्स एक्स कंडीशन। अब लेफ्ट हैंड साइड से मैं इक्वेशन बनाता हूँ, इक्वेशन होगी वी ए, यहाँ पे एक वर्टिकल होगा यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल होगा, दिस इज वी ए दिस इज एच ए। वैल्यूज आपको मालूम है, वी ए इंटू डिस्टेंस कितना है परपेंडिकुलर एक्स। अब इस पॉइंट पे जाना है, उसके लिए आपके लिए एच ए की वैल्यू क्या होगी, दैट इज ये कैसा मोमेंट कर रहा था, वी ए इन क्लॉकवाइज
एच ए कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, सो माइनस एच ए इंटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर दिस पॉइंट इज वाई. अब एच ए इंटू वाई इज द मोमेंट जनरेटेड बाय द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट. और कोई फोर्स है यहाँ पे, हाँ जी बिल्कुल है, यहाँ पे एक ये W किलो न्यूटन का पर मीटर का फोर्स है, दैट विल प्रोड्यूस अ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, सो माइनस W इंटू एक्स बाय 2. ये आ गया बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन एट दी एक्स एक्स सेक्शन. अब वी ए की वैल्यू है आपके पास W इंटू आर आपके पास वैल्यू है. वी ए हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं W इंटू आर. अब वी ए आपको मालूम है इंटू दी एक्स डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ रेडियस, दैट इज आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. अब माइनस एच ए कितना है, डब्ल्यू आर बाय टू. अब एच की वैल्यू आ गई है, वाई हमें मालूम है इन टर्म्स ऑफ आर, दैट इज आर साइन थीटा, माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2. तो एक्स स्क्वायर होगा तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ जाएगी वैल्यू. ओके, तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. अब इसको पूरा सॉल्व करिए, ये क्या आ जाएगी इक्वेशन, दैट इज डब्ल्यू आर स्क्वायर माइनस डब्ल्यू आर कॉस थीटा माइनस डब्ल्यू आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा. अब आपको यहाँ पर कोई फॉर्मूला याद आ रहा है, डब्ल्यू दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे क्या, नहीं, दिस इज 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर. देखिए यहाँ पे ये हो गया है वैल्यू आर इंटू 1, this will be r, this will give you r square, and r will also multiplied with cos theta, so this will also be r square. So आपकी वैल्यू आई डब्ल्यू आर स्क्वायर कॉस थीटा माइनस डब्ल्यू आर स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है, और यहाँ साइन थीटा हो गया, और ये हो गया डब्ल्यू बाय 2 आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर. ओके, अब ये वैल्यूज आ गई हैं आपके पास. अब आपके यहाँ से पहले डब्ल्यू आर स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, और यह जाएगा 1 माइनस डब्ल्यू कॉस थीटा. ओके, अब देखिए डब्ल्यू आर स्क्वायर और किस में है कॉमन है, और 1 माइनस कॉस थीटा इसमें है, इस वाली टर्म में. सो अगर इस टर्म से मैं ये कॉमन ले लेता हूँ पूरा, तो ये टर्म तो हमारी कॉमन आ गई बाहर पर, डब्ल्यू आर स्क्वायर, ठीक है. तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2, ये कुछ ऐसा बचेगा, माइनस डब्ल्यू आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा. देखिए इसमें ये इसका और ये कॉमन है, क्योंकि हम कॉमन ले चुके हैं 1 माइनस कॉस, एक स्टेप जल्दी कर दिया मैंने. तो ये आपकी इक्वेशन आ गई. अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी इक्वेशन ये क्या आ जाएगी, मोमेंट एट एक्स, दिस इज द मोमेंट एक्स. तो ये आ गया आपका मोमेंट बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन एट एक्स एक्स. अगर इसको और सॉल्व करना है तो हम और सॉल्व कर सकते हैं इसको. देखिए थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री आपको लगानी पड़ेगी इसमें. सो इसको सॉल्व करेंगे, सो लेट इट बी डब्ल्यू आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा. इसको एलसीएम लीजिए यहाँ पे, 2 माइनस 1 माइनस माइनस विल प्लस, सो दिस विल बिकम 1 प्लस cos theta upon 2, okay, minus w r square upon 2 sin theta. अब ये वैल्यूज आपको पता लग गई है. अब देखिए आप डब्ल्यू आर स्क्वायर इसमें कॉमन लीजिए, डब्ल्यू आर स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2, ठीक है, माइनस साइन थीटा बाय 2. अब ये मल्टीप्लिकेशन में a माइनस बी और a प्लस बी का, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो
a square will be 1 minus b square will be cos square theta. So 1 minus cos square theta is sin square theta. So this will be sin square theta by 2 minus sin theta by 2. सो ठीक है, ये वैल्यूज आ गई है, आप इसको बाहर ले जाएंगे. दिस विल बी डब्ल्यू आर स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन है दोनों में, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन. ये आपका आ गया बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन. अगर आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछा होगा तो आप क्या करेंगे, डी एम एक्स अपॉन डी थीटा विल बी इक्वल टू 0. इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए. दिस इज दी homework for you guys, that you have to tell the value of maximum bending moment of the semicircular are subjected to UDL on the entire span. उसके लिए maximum bending moment की वैल्यू कितनी आएगी ये आपको निकालना है. इस इक्वेशन को आप डेरिवेट करोगे with respect to theta. So I hope the concept is clear. Just you have to apply the basics of the equilibrium equations and just solve the equation one by one. Okay, so that is it for today. So thank you very much.